આજનો એપિસોડ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપમાં અતિ મહત્વનો કેન્દ્રીય વિચાર ધરાવતો એપિસોડ છે. જે દોસ્તોએ સાંખ્ય યોગ્ય વાંચી લીધો હશે એને થોડો ખ્યાલ આવ્યો જ હશે કે હું આજે કયા વિષય પર વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. આજે એવો વિષય છે જેની ઉપર ખૂબ બધા ભ્રમો પ્રવર્તે છે અને ખૂબ બધી લારિયાવાળી પણ ચાલે છે. એટલે આજે આપણે ગંભીરતાથી સમજવાના છીએ, પણ એના માટે કંઈ ચહેરો ગંભીર રાખવાની આવશ્યકતા નથી. જેના મોઢામાંથી સાંખ્ય યોગ નિસૃત થયો છે એ તો મધુરતાના સ્વામી હતા. એમના ચરિત્રમાં હંમેશા મધુરમ અસિતમ મધુરમ વસિતમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. તો બધા આપણે મધુરતાનું પાન કરતા હોઈએ તો આપણા ચહેરા તો મધુરતાના પાન માટે ઉત્સુક કેવા હોય છે. તો ચાલો શેરિંગ ફીડબેક ગઈકાલે મેં ખૂબ કામ સોંપ્યું હતું. યસ જયભાઈ. હા સર, કાલે આપે જે કામ સોંપ્યું હતું કે જે હોમવર્ક હતું વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ કે કંઈ સ્વીકારવાનું હોય કાં તો કોઈને સોરી કહેવાનું હોય, તો એના વિશે ફીડબેક છે કે મારા એક ઓફિસના ગુજરાતી કલીગ છે, એટલે મારી પાસે બુક વસાવેલી છે આઈક્યુ વિજયવાલા સાહેબની બાળ આરોગ્ય શાસ્ત્ર. એટલે કોઈને પણ ત્યાં બાળકનો જન્મ થાય તો હું એ બુક એમને આપું અને પછી એ ફરતું રહે, એટલે બધાને, કારણ કે એ ઉપયોગી બુક છે તો બધા એનો ઉપયોગ કરે એવું મારી ઈચ્છા. હવે મારે એમને વાત થઈ હતી કે હું તમને આ બુક આપીશ, અને થયું કે લોકડાઉન પછી તરત જ એ લોકડાઉન થઈ ગયું વાત થયા પછી હું બુક આપી ના શક્યો. એટલે મને અંદર વસવસો હતો કે હું એમને બુક ટાઈમસર પહોંચાડી ના શક્યો, અને મેં પ્રયત્નો કર્યા નહીં. એનો મને અફસોસ હતો, પણ મેં એમને કાલે કોન્ટેક્ટ કર્યો અને એ બહુ નજીક જ રહે છે મારાથી, એટલે ફિઝિકલી હું એમને સંપર્કમાં બી આવી શક્યો. અને પછી મને સુખની પ્રાપ્તિ થઈ કે સારું થયું કે મેં એમને કોન્ટેક્ટ કર્યો અને આઈ કુડ કનેક્ટ ટુ હિમ બેક. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. હવે જે લોકોને એમ લાગતું હોય કે ચોપડી આપવાનું તો બહુ નાનું કર્તવ્ય છે, હું તો તમને બતાવી દઉં કે દાયરો ક્યાં સુધી જશે. ચોપડીમાંથી એ પરિવાર વાંચીને એના બાળ ઉછેરમાં જે ખાસ કાળજી રાખશે, એનાથી જે બાળક તૈયાર થશે એ આગળ જઈને શું કરશે એની કોઈ કલ્પના કરી શકાય નહીં. પણ એ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવશે એવા આશયથી જયભાઈએ કર્યું, એટલે એમના પક્ષે એમણે મોટો ઇમ્પેક્ટ કરવાનું કામ કર્યું. સમજાય છે? આવું સમજવું જરૂરી છે, કારણ કે માણસો જ આવું દૂરનું વિચારી શકે છે. પ્રાણીઓને માટે આ દૂરનું શક્ય નથી. એ ખાલી એવું જોવે કે અહીંથી ત્યાં ઘાસ ગયું, ખાધું પીધું મોજ કરી. તો પ્રાણીની દ્રષ્ટિથી કે પશુ ચેતનામાંથી જોઈએ તો પુસ્તક ગયું એટલું જ દેખાય. વિચાર પક્ષથી ખબર પડે કે વિચાર ગયો અને ફ્યુચર ગયું, અને પુસ્તક આપવા પાછળનો ભાવ ફ્યુચરિસ્ટિક હતો. તો જયભાઈને અત્યારે રોમાંચ થશે. મારા બાળકોના જન્મ પહેલા મેં એક પુસ્તક વાંચવાનું શરૂ કરેલું, ધ ફર્સ્ટ 3 years ઓફ લાઈફ, બર્ટન વ્હાઇટનું. એ પુસ્તકમાં બર્ટન વ્હાઇટે દુનિયાભરની અંદર રખડીને ફરીને સ્ટડી કર્યો હતો કે પહેલા 3 વર્ષ દરમિયાન બાળકોના વર્તન કેવા હોય છે. અને મજાની વાત એ હતી કે દુનિયાના કોઈ પણ પડમાં ગમે તે બાળક જન્મે એના વર્તન લગભગ સમાન છે, અને એની સાથે માતા પિતાઓ કેવી રીતે વર્તે તો એનો ઉછેર સરસ થાય. એટલે એ પુસ્તકમાં અમે ચેપ્ટર વાંચતા ગયા, અઠવાડિયું દીકરીના જન્મ વખતે જોતા ગયા, અને 3 વર્ષ પુસ્તકની સાથે અમારા બાળ ઉછેરમાં ગયા. ત્યાર પછી એ પુસ્તક મેં ફેરવવાનું શરૂ કરી દીધું. કોઈને પણ આપું, એ વાંચી લે, પછી મને પાછું આપે, ઝેરોક્સ કઢાવે, કારણ કે એ પુસ્તક ત્યારે દેશમાં મળતું નહીં એટલે ઇમ્પોર્ટ કરવું પડતું. ચોમાસાની અંદર પહેલો વરસાદ નહીં પણ બીજો કે ત્રીજો વરસાદમાં બાળક નાહવા જાય અને બાપને રજા હોય તો એણે ખાલી ચડ્ડો પહેરીને છોકરા સાથે જવું જોઈએ. ગામ ગયું તેલ લેવા, એની સાથે કીચડમાં, વરસાદમાં, પાણીમાં રમવું જોઈએ. આ પહેલો ફંડામેન્ટલ, કારણ કે પહેલા પિતા છીએ અને પછી બીજો બધું જ વસ્તુ છે. હા, એવું નથી કહ્યું કે ઓફિસ છોડીને જાઓ, પણ પછી સુરેશભાઈને યાદ કરી લો વચ્ચે, આજે જવું નથી કોઈના કામ પર, અલે આ ધીંગા વરસાદ તારા નામ પર. કોઈક દિવસ એવું પણ હોય કે વરસાદની મોજ પડે તો કામમાં છુટ્ટી લેતા આવડવી જોઈએ, અને એવી નોકરી હોવી જોઈએ છુટ્ટી લઈ શકાય. મને કોઈ પૂછે ને કે કઈ નિશાળમાં બાળકોને મૂકવા, તો કોઈ સરકારી અને ઘરથી નજીકનીમાં મૂકવા. એટલે મેં તો મારે નહીં, ભણાવે નહીં, એટલે કમસે કમ ખોટું તો ના ભણી જાય, એટલે જલ્દી ઘરે આવતા રહે, પછી જે ભણાવવાનું છે આપણે ભણાવીએ. એની અધર ફીડબેક? જય હિન્દ સર. જય હિન્દ સર. મારે આ જે વ્યક્ત કરવું છે એ 2 વ્યક્તિઓ માટે છે, મારા હસબન્ડ અને મારી ડોટર સાથે. તો ફર્સ્ટ આઈ વિલ ટેક અપ વિથ માય હસબન્ડ. સર, એમાં
શું થતું હતું કે જે મને એમના પ્રત્યે નહીં ગમ્યું હોય, એ મતભેદ હોય, તેને હું શબ્દો વાટે તો નહીં પણ બહુ કટુ સાયલન્સ વાટે જરૂર એક્સપ્રેસ કરતી હતી. તો સર આ લિસનિંગનું અને પર્ટિક્યુલરલી આ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપના કારણે જે આખો મનનો જે બદલાવ થયો છે, તો તેમાં આઈ ટોલ્ડ હિમ યસ્ટરડે કે મને ઘણું સારું લાગે છે આના કારણે, અને મને તમને કંઈ કહેવું છે કે આ વસ્તુ મને તમારાથી દૂર કરતી હતી એમ. ભલે એટલે કેમ કે સર હી સાયકેટ્રિસ્ટ એન્ડ હી રીચેસ આઉટ ટુ મેની અધર પેશન્ટ, એટલે કઈ ગંદી એટલે એબ્યુઝિવ લેંગ્વેજમાં કે ઝઘડા તો નહીં, પણ જે સાયલેન્સની કટુતા હોય ને સર, એ બી જો મારાથી એમને પ્રેમ ન પહોંચે તો નેચરલી દેટ લિંક વિલ ગો ટુ ધોઝ પેશન્ટ્સ, અને ક્યાંય એમની સાથે બી રૂડી થઈ જાય, બહુ ટિપિકલી બહુ બ્લન્ટ થઈ જાય, એ મને નહોતું ગમતું. તો મેં કીધું કે એટલે એટલીસ્ટ મારા થ્રુ તો તમને બ્લન્ટનેસ ન પહોંચે એ મારે કરવું જોઈએ, અને હું નહોતી જોઈ શકતી. એન્ડ હી ફેલ્ટ કે ઇટ ઇઝ સો ગુડ દેટ યુ આર ટેલિંગ મી, પણ કે અમુક ત્રુટીઓ મારા પોતાના સ્વભાવની છે, એ તારા થ્રુ નથી આવી. તો થોડુંક મને એ સારું લાગ્યું. પછી સર એક મારી ડોટર માટે કહીશ કે એઝ દે આર ગ્રોઈંગ અપ ટીનેજ, સર નાનપણમાં હું પ્રોફેશનમાં એટલી બિઝી રહેતી, એટલે મને થોડું ગિલ્ટ, એટલું હોવરિંગ ઓવરપાવરિંગ ગિલ્ટ રહેતું હતું કે મેં મારા મોટા દીકરાને સંપૂર્ણ ટાઈમ ન આપ્યો. પણ સર આની સાથે ઓવરડુઈંગ થઈ ગયું, એટલે શી વોન્ટેડ સમ સ્પેસ એન્ડ ફ્રીડમ. એટલે એને એમ જ થતું હતું કે મમ્મા ઇઝ લાઈક હેલિકોપ્ટર પેરેન્ટ ઓર દેટ. અને 2-3 વસ્તુમાં તો જે મારો હેતુ હતો એના કરતા ટોટલી 90 ડિગ્રી એને સમજ્યું. તો સર એ સંવાદમાં વેટે એને કીધું કે મમ્મા તું જોટ ડાઉન કર, આપણે બે બેસીને બધા પોઈન્ટ અમે લખ્યા કે મને શું નથી ગમતું, એને શું નથી ગમતું. અને સર વિધાઉટ લાઈક keeping our emotions in park, we just talked on those points step by step. અને I was so, એટલે સર મને એટલો અદ્ભુત રીતે અંદર સરપ્રાઈઝ થતી હતી કે આ દરમિયાન વચ્ચે ક્યાંય બી ના એને આઉટબર્સ્ટ કર્યો ના મેં કર્યો, અને અમે શાંતિથી મુદ્દાઓ વિશે બોલી શક્યા જે બેયને એટલા પિંચ કરતા હતા પણ ક્યારેય સામે નહોતા આવતા. પછી એના સોલ્યુશન માટે શું કરવું સર, એના માટે એને મને બીજા 15 દિવસનો 15 મિનિટનો બીજો સ્લોટ આપ્યો છે. કાલે અમે એના પર વાત કરશું, બટ એટલીસ્ટ વી કુડ ટોક અબાઉટ અવર પ્રોબ્લેમ્સ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ સરસ આખીબેન, તમે હોમવર્ક કર્યું એના માટે. કેટલાય લોકોને આની અંદર તમારા શેરિંગથી ઓપનિંગ આવશે, કારણ કે આપણે હેઝિટેટ થઈએ છીએ, અને હેઝિટેટ થઈએ છીએ એટલે ક્યારેય રિઝોલ્વ થતા નથી ઇશ્યુઝ. યસ, પ્રણાલી બેલડિયા. હા અંકલ, મારે કાલના રિલેશનમાં એ પૂછવાનું હતું. અમે છે ને ઘરના 4 મેમ્બરો અમે બેસીએ છીએ, હું, મમ્મી, ભાઈ અને ભાભી. એટલે પછી અમે ચારે તો કાલનું હોમવર્ક કરી નાખ્યું કે અમે એકબીજા સાથે વાત કરીને પૂછ્યું કે શું ગમે છે ને શું અણગમો છે. પણ મારા પપ્પા નથી બેસતા, તો એમની સાથે હવે કોમ્યુનિકેટ કેવી રીતે કરવું, અને બધા કરવામાં અચકાય છે. ઓકે, ગુડ. સંદર્ભ પર એમની સાથે જો વાત કરશું ને તો બધું ઉલટું જ જશે. હમણાં તમે તમારી 4 વચ્ચે સંવાદ ચાલુ રાખો, કારણ કે હું તમારા પપ્પાને પણ ઓળખું છું. જો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. જ્યારે આપણને કનેક્શન છે, રેફરન્સ છે, તો હું એમની સાથે બહુ સ્પેસિફિક વાત કરી શકીશ. તો પ્રણાલી, બધાને ઉપયોગી થાય એવી રીતે આપણે વાત કરશું, પણ આજના દિવસે કદાચ એની વાત નહીં કરીએ. ત્યાં સુધી અહીંયાથી જેટલું સજેસ્ટ કરું છું એટલું તમે 4 તો કરો જ કરો, પણ એક જીનેરિક જવાબ આપી દો, અને હું ગાઈને આપું છું. मेरी मोहब्बत में तातीर है तो खींच के मेरे पास आओगे तुम, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलके बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत. તમને ચારેયને પપ્પા માટે જે પ્રેમ છે એ પ્રેમનો અહેસાસ એમને જે ક્ષણે થશે એ ક્ષણે આવશે. એ અહેસાસ કરાવવા માટે વિશેષ પ્રકારની અભિવ્યક્તિ કરવી પડશે, અને વિશેષ અભિવ્યક્તિ સંબંધનું સૂત્ર સમજાવવાથી સહજ થશે, નહીં તો આર્ટિફિશિયલ થશે. દાખલા તરીકે પ્રણાલી, હું તને કહું કે તું અત્યારે અને અત્યારે ઉપર, અને પપ્પા જ્યાં હોય ત્યાંથી એમને હાથ પકડીને ખેંચી લાય, જે થાય તે, તને બે ધોલ મારે તો બી
એ અભિવ્યક્તિ છે, પણ તારા માટે સાહજિક નહીં બને, કારણ કે તું જ એને સ્વીકારશે નહીં. તો પહેલા એકવાર આપણી અંદર સાહજિકતા સ્થપાઈ જાય કે હા આમ જ કરવું છે, તો પછી તરત ફેર પડશે. તારા પપ્પા ચોક્કસ પાછા આવશે, કારણ કે રવિશંકર મહારાજ અને જયપ્રકાશ નારાયણ ઘાટીઓમાંથી ડાકુઓને લઈ આવ્યા છે. તારા પપ્પા ડાકુ તો નથી, ખાલી અતિ વ્યસ્ત છે, ખૂબ ભલા છે અને સમાજ માટે કામ કરવા વાળા છે, અને એમના કામ થકી સમાજમાં સેંકડો લોકોનું ભલું થઈ રહ્યું છે, પણ એ ઘરમાં સમય નથી આપી રહ્યા. ખાલી મુદ્દો એ જ છે. એટલે આપણે કરશું કામ. ઓકે, હવે તમે 4 ને બદલે મને 5માં તમારી સાથે લઈ લો. બોલો, આનાથી વધારે શું આપવું? યસ. જો કેટલા બધા ખુશ થઈ ગયા. તમારી જે ખુશી છે ને એ મને તૃપ્તિ નો અહેસાસ કરાવે છે. રાઈટ? યસ ચંદ્રેશ. સર, આ જે રદ્દીક ભાઈએ પ્રશ્ન પૂછે ને એના સંલગ્નમાં છે કે આપણા ઘરના લોકો પાસેથી, નજદીકના જે લોકો છે એમની પાસેથી આપણે ખૂબ એક્સપેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે ઓછા શબ્દોમાં એ ખૂબ સમજી જાય એવું ઈચ્છતા હોઈએ છીએ. એટલે એક તો કમ્યુનિકેશન ઓછું થાય છે, અને પ્લસ જે થાય તો એ જો ન સમજવામાં આવે સામાન્ય વ્યક્તિ તો ત્યારે હાર્શ થઈ જાય છે. કારણ ન બોલેલા શબ્દો સમજો અને તમે શું કહેવા માંગતા હો એ તરત સમજી જાય એવી ઈચ્છા સાથે પછી ઉગ્ર થઈને કમ્યુનિકેશન અવળે પાટે જતું રહેતું હોય છે. સો બેઉ તરફથી કઈ રીતે સામેનાને સુદૃઢ કરવું અને કરતી આપણે જાતે કઈ રીતે એને ડાયવર્ટ કરવું, એના માટે શું કરવું? ઓકે, તો કમ્યુનિકેશનની સિરીઝમાં તમે હતા એટલે તમે આને વધારે ઊંડાણથી સમજી શકશો. આપણા જે સંબંધોની અંદર જે સંવાદનું સ્વરૂપ છે ને, मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ. संबंधों में जो संवाद है उसका एक ही विषय रहता है, काम. जैसे ये कबाड़ साफ कर दो, ये झाड़ू पोछा लगा दो, ये दूध ले आओ, ये सब्जी ले आओ, ये बच्चे के स्कूल की फीस भर दो, ये इतना कर दो, वो कर दो, या तुम ये खाना पका दो, आज जल्दी जाना है, ब्रेकफास्ट जल्दी कर दो, आज कद्दू की सब्जी मत बनाना. यही मेजॉरिटी कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं. इसको कहते हैं अटेंशन ऑन टास्क. अब शिफ्ट कहाँ करना है? इंटेंशन ऑन कंसर्न. हमारी जो निस्बत होती है, कंसर्न्स होते हैं, हम कंसर्न का कम्युनिकेशन ही नहीं करते, केवल काम का कम्युनिकेशन करते हैं. और ऐसा मेरे घर में भी हो रहा है. सुबह में आज कहा गया कि आज दूध लेने जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्वामी जी को मैसेज दे देता हूँ. तो मैंने स्वामी जी को मैसेज दे दिया. अब देखना है, उनको मैं बता चुका हूँ कि 12 बजे से पहले स्वामी जी मैसेज नहीं देते, क्योंकि वो गौशाला से 12 साढ़े 12 के आसपास फ्री होते हैं, तभी मेरे मैसेज का जवाब देते हैं. फिर मैं दूध लेने जाता हूँ. तो उस बात पर तो स्पष्टता हो गई थी. पहले इस पर हुआ था कि वो जब पूछती मैसेज किया तो मैं कहता देखो एक बार बता दिया, दूसरी बार नहीं बताने का, क्योंकि मैं परफेक्ट हूं इस काम के अंदर. तो वो तो छूट गया. अब 12:30 नहीं 1 बज गए. अब जरा हल्के टोन से बात आई कि स्वामी जी का जवाब आया. मैंने कहा जवाब आ गया. आधे घंटे के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि तो शाम को कभी भी फोन करेंगे, क्योंकि वहां कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है. अब उसने कहा कि क्या आप दूध ले आओगे? और जैसे ऐसे कहा, मैंने कहा ऐसे तू कैसे बात करती है? जब जब तू कहती है मैं लेके तो आता हूं. देखिए अब गड़बड़ी कहां है. She just want to speak something. She just want to communicate with me. And I'm engrossed in my computer in work for this evening webinar. So I want 100% focus attention. And for me it is an unnecessary disturbance, because language is such, ले आओगे that means क्या मैं नहीं ले आऊंगा, डिस्ट्रेस है. तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कहती है? तो बोले तुम्हें केवल इतना ही कहना था कि हाँ ले आऊंगा, इतना क्यों कहते हो लंबा. ये आज के दिन की सत्य हकीकत. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कंसर्न का कम्युनिकेशन नहीं करते. उसको क्या कहना था सुबह में बता दूंगा, आज दूध लाना पड़ेगा, और शाम को 5 बजे तक कभी भी आ जाए चलेगा. दैट्स इट. मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इतना कंसर्न कहना मतलब वर्क इज डन.
समझ में आया? कल मैंने डेमो करके दिखाया था. પછી તમે રાખીબેન ગૌશાળા જજો, પછી સ્વામીજીને કહેજો કે આ બરણીમાં 2 લીટર આપો અને આ બરણીમાં 1.5 લીટર આપો. હવે હું કહું કે આ 2 બરણીમાં શું ડિફરન્સ છે? સાઇઝ તો બેની સેમ જ છે. કે આ બરણીમાં ઉપર કાણું છે એટલે 2 લીટર હોય ને તો આમાંથી બહાર નીકળે, અને આ બીજી બરણીની અંદરથી બહાર નહીં નીકળે. એટલે હવે હું તો ગયો, મેં સ્વામીજીને બિલકુલ કીધું આમાં 2 લીટર, આમાં 1.5 લીટર. સ્વામીજીએ એની નીચે એના ભક્તને કીધું, એ ભક્તને એની નીચેના ભરવાડને કીધું, ભરવાડે એની પત્નીને કીધું. ઉલટું ભરાઈને આવ્યું. મેં ઘરે જઈને બરણી મૂકી, કારણ કે કારની અંદર પણ થોડું તો ઢોળાયું જ હતું. મૂક્યું, એમાં બી બાજુમાં રેલા હતા. આ ઈશારો સમજી ગયા હશે એટલે મારે વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. મુદ્દો તમને ખ્યાલ આવે છે? ધીઝ આર ધ સ્મોલ ટાઇની ઇશ્યુ. ચંદ્રેશને એકદમ દેખાતું હશે. આવા ટાઇની ઇશ્યુ હોય છે. આ ટાઇની ઇશ્યુમાં પણ મને હવે ખબર છે વિજ્ઞાન કે ભાઈ આમ કેમ થાય છે. કારણ કે દૂધ ઢોળાવવું ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે સંવાદ અને સંબંધ કરતા. કારણ કે આપણી પાસે સંવાદમાં બીજા વિષયો નથી. જો ધ્યાન એ વખતે, એનો મતલબ એવો નથી કે અમારા બંને વચ્ચે આવી જ વાત થાય. અમે ખૂબ બધી જીવન વિદ્યાની ચર્ચાઓ કરીએ છીએ અને કલાકો એ વિષય પર વાત કરતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે એક મેગ્નિફિસન્ટ, સિગ્નિફિકન્ટ, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી, જિંદગીને એલિવેટ કરનારો વિષય આવે ત્યારે બહુ મોજ પડે. હવે હું જરા એવું નથી કહેતો કે બરણીમાંથી દૂધ ઉભરાય તો એક વાત કરવાનો વિષય નથી. છે, કારણ કે ઉટક જેને પડતી હોય ને એને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય. કારણ કે દૂધ સુકાઈ જાય તો પછી એ ઘસવું પડે. અને આપણે માનતા હોઈએ કે આ લઈ આવ્યા પછી એમાં કેટલી વાર, પણ ગૃહિણી 50 કામો બીજા હોય, એ તરત ને તરત એ નહીં કરે. એટલે પણ કન્સર્ન જો આ સમજાવાયું હોય ને તો હું પણ સામે એવું કન્સર્ન સમજાવું કે હું આમ કહીશ ખરો પણ એમ થવું જરૂરી નથી, કારણ કે ત્યાં લોટ ઓફ કન્ઝેક્વન્સીસ છે. જ્યારે નિસ્બતનું કન્વર્ઝેશન નથી થતું ત્યારે ટાસ્કનું કન્વર્ઝેશન પૂરું થઈ જાય. આ લઈ આવજો, ઓકે, 2 લીટર 1.5 લીટર, ફાઇન, ધેટ્સ ઇટ. સમજાય છે? ના એના હૃદયમાં ખોટ છે, મારા હૃદયમાં કઈ ખોટ છે, પણ છતાંય કન્ફ્લિક્ટ થાય છે ઉભો. તો આપણે નિસ્બતનું કોમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, કન્સર્નનું કોમ્યુનિકેશન કરવાનું છે. અને જિંદગીમાં કન્સર્ન જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નિસ્બત જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ પણ સંબંધની અંદર નિસ્બત જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. શું કામ જોડાયેલા છીએ? અંકિત ને ભાગ્યશ્રીના લગ્ન થયા ત્યારે એ લોકો સપ્તપદીની પ્રતિજ્ઞા ફર્યા હતા. એ લોકો મને બોલાયો નહોતો લગ્નમાં, કારણ કે એ લોકોનું લગ્ન થયા ત્યારે અમારો પરિચય નહોતો. તો લગ્ન થયા અને ધ્યાનવી આવી, એમની દીકરી, એની દીકરી મારા પ્રેમમાં પહેલા જ પરિચયમાં પડી. જરા ધ્યાનવીને ઊંચી કરીને બતાડો ઓડિયન્સને, એટલે ખબર પડે કે ધ્યાનવીએ કઈ રીતે એના માતા પિતાનો પરિચય કરાવ્યો છે. ધ્યાનવી અત્યારે કેટલા વર્ષની થઈ બેટા? ઓડિયો ઓન કરીને કહો ભાગ્યશ્રી. 9 વર્ષની. ઓકે, હું માનું છું ધ્યાનવી લગભગ 4 વર્ષ પહેલા શિબિરમાં બેઠી હશે. અંકિત? ઓકે, 5 વર્ષની ઉંમરે ધ્યાનવી શિબિરમાં પહેલી બેન્ચ ઉપર આવીને બેઠી અને 5 દિવસ સુધી સતત બેસી રહી. અને દરેક બ્રેકમાં મારી પાસે આવે અને પૂછે, અંકલ તમારા માટે આમ લઈ આવું, તેમ લઈ આવું, તમને ચોફી કેન્ડી ખાવી છે? અને અંકલ એની સાથે વાતો કરે. ધ્યાનવી એની મમ્મી ભાગ્યશ્રીનો પરિચય કરાવ્યો, ધ્યાનવી એના પપ્પા અંકિતનો પરિચય કરાવ્યો. તો તમને સમજાશે કે સંબંધ ક્યાં ક્યાંથી જોડાય છે. નિસ્બત, મને નિસ્બત હતી કારણ કે એ એની ખુશી મારી સાથે શેર કરે. હવે હું ભલે મોટા ફિલોસોફિકલ સબ્જેક્ટ લેતો, અમારી બંને વચ્ચે વાતનો વિષય સેમ નથી, પણ બંને વચ્ચે નિસ્બત સેમ છે. નિસ્બત શું છે સંબંધની? સાથે મળીને ખુશ થવાનું છે. કોઈ પણ સંબંધની અંદર સંપર્ક અને સંબંધ, એટલે સંપર્ક ન પણ હોય તો પણ એનું હોવાપણાથી ખુશ થવાનું છે. અને ખુશી છલકાય એટલે તમને વેચ્યા વગર ચાલે નહીં. તમને એમ થાય કે ચલો વેચું તરત જ. એને માટે તમે પાસે હોય એને વેચો, દૂર નહીં પણ વેચો, જેમ મેં શ્રીપાલભાઈની સાથે વેચી. નિસ્બત 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 આઈ થિંક ઘણું રાઈટ આજના દિવસમાં. રાઈટ રજનીભાઈ, આગળ વધીએ.
ક્વિકલી પીપીટી બતાવું છું, વિડીયો ઓફ કરી દો. સંબંધ શું છે? તો સંબંધને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી દીધો છે, સમગ્રતા અને સંપૂર્ણતા માટે સંબંધ. હવે આપણે એક સ્ટેપ આગળ ચાલીએ છીએ. તો સમગ્રતા અને સંપૂર્ણતામાં જો સમગ્રતાનો જે આયામ છે એની અંદર આદાન પ્રદાનની વાત છે, જેમાં હિસાબ છે कि 5 रुपया लो और चॉकलेट दो. इसमें कुछ बुराई नहीं है, पर इसको समझना है ये केवल आदान प्रदान पर टिका हुआ या आदान प्रदान पर हमारा ध्यान है, ऐसा एक संबंध है. तो सभी जगह ये आदान प्रदान चल रहा है. जैसे अभी मैं यहां से नेपाल जाऊं तो क्रॉस बॉर्डर पर इमिग्रेशन वाले मुझे रुकेंगे और कहेंगे पासपोर्ट दिखाओ. इंडियन पासपोर्ट दिखाते ही जाने देंगे, वीजा नहीं चाहिए. लेकिन ये मिनिमम आदान प्रदान तो हो गया. अमेरिका की इमिग्रेशन ऑफिस में बहुत सारे सवाल पूछेंगे, यहां भी आदान प्रदान है. तो ये केवल आदान प्रदान पर टिका हुआ है. मैं जो आपको ले चलना चाहता था, मैंने स्लाइड में भी पहले यही लाइन लिखी थी, संपूर्णता का आयाम ये उपयोगिता और पूरकता का है. और उसके लिए सिंपल उदाहरण है, जैसे मैं किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता क्रॉस कराता हूं. अब वो मुझे कुछ देगा नहीं, ना पैसा, हालांकि मैं अपना समय और ऊर्जा खर्च कर रहा हूं, पर उसमें मुझे मेरी उपयोगिता दिखती है कि मैं देख सकता हूं, ये व्यक्ति देख नहीं सकता. और मैं अगर इसको रास्ता क्रॉस करा दूं तो मैं उसके रास्ता क्रॉस करने की प्रक्रिया में पूरक हो सकूंगा, क्योंकि वो अपने पांव से चल ही रहा है, केवल मुझे हाथ ही पकड़ना है. तो इतनी ही पूरकता मुझे करनी है, तो मुझे सुख का एहसास होगा. देखिए, आदान प्रदान के अंदर वस्तु की चीजें आगे पीछे होगी तो हिसाब है. यहां लिखा है मैंने सुख. तो उपयोगिता पूरकता जब संबंध का दायरा बनता है तो हमें सुख का एहसास होता है. आज जो सांख्य योग की मैं बात करने वाला हूं, इसके लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है. दो व्यक्तियों के बीच संबंध में वैसे तो अव्यक्त का ही संबंध है, जिसके बीच में कार्य, विचार और उर्मियां आ जाती है. इसलिए हम जुड़े हुए होते हुए भी हम अलग अलग है. तो नाउ आई एम इनवाइटिंग यू टू एक्सप्लेन दिस. आइए, स्लाइड दिखाने का पर्पस केवल इतना ही है कि मैं जब बोलूं तो आपके अंदर वो शब्द भी दिख जाए, ताकि स्पष्ट हो जाए. तो मैंने आपको ये कहा कि समग्रता के अंदर हम कुछ न कुछ लेन देन करते हैं. अभी तिमिर भाई ने आकर के राखी बहन को 10,000 रुपये थमाए कि दूध वा बिल भर देना, क्योंकि दूध वाला कैश मांगता है, तो मैं तेरे लिए एटीएम का प्रयोग करके कैश लेके आया हूं. अब ये आदान प्रदान दोनों के बीच हुआ कि नहीं हुआ? अब राखी बहन के पास भी कार्ड है, वो भी तो एटीएम में से निकाल सकती है. अब दोनों व्यावसायिक है. अब तिमिर भाई को ऐसा लगे कि लौटते समय में इतना काम कर दूं तो राखी के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, उसको स्पेशली जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो घर से वर्क कर रही है. अब दोनों के बीच में कंडीशन तय है कि घरेलू पेमेंट सब तुम करोगी और तुम ही संभालोगी, उसमें मुझे मत ले आना. ऐसा डेक्लेरेशन हो गया है. फिर भी अगर तिमिर भाई ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये आदान प्रदान का दायरा अब नहीं है, अब उपयोगिता और पूरकता का दायरा है. समझ में आ रहा है? तो घर में माताएं जब भोजन बना के बच्चों को खिलाती है तो वो आदान प्रदान है. लेकिन माँ जब ये कहती है कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे शरीर में बुखार है, शायद ये ना भी बोले कि बुखार है, शायद बोले भी ना भी दे, घर में बने हुए व्यंजन को छिपा ले, तो अब ये उपयोगिता वाला मामला है. नहीं देने पर भी उपयोगिता वाला मामला है. देखिए, आदान प्रदान में क्या रहता है? लुकिंग गुड. जबकि उपयोगिता पूरकता में क्या रहता है? बीइंग गुड. आगे मैं एक उदाहरण दे चुका हूं कि मैं किसी के घर भोजन के लिए गया, मुझे कम परोसा गया. शायद कुंजल बहन के घर की ही बात थी, वो तो भूल गई होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि मैं जब पूना गया तो उन्होंने कम परोसा, और यही कुंजल बहन राखी बहन के घर पे आके परोस रही है. और मेरे टेंशन शुरू हो गया. प्रसंग याद आया, राखी बहन को याद आ गया, लेकिन कुंजल बहन को अभी याद नहीं आया, क्योंकि वो कहीं उलझी हुई है नोट बनाने में. तो दरअसल
जहां ट्रांजैक्शन फोकस में है, आदान प्रदान फोकस में है, वो बुरा नहीं है लेकिन सीमित है। अभी मैं उत्पल के साथ का एक शेयर करता हूं आपके साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उत्पल भाई जो है वो एमेरॉन बैटरी के पूरे गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ी धर्मनिष्ठा के साथ काम करते हैं, इसीलिए तो दोस्त है। वैसे क्लाइंट बन के आए थे लेकिन जिंदगी में आ गए। तो कहीं मेरी बैटरी खराब हो गई और मैंने फोन किया कि मेरी बैटरी खराब हो गई है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा वो बैटरी तो शिफ्ट हो गई। जब मैंने पेमेंट की बात करी तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं लेने हैं। मैंने क्यों भाई, पैसे तो लेने पड़ेंगे। बोले इतना तो हमें उपयोगिता का भाव है, हमें इतना तो सेवा करने का मौका दो। हम कहाँ बड़ी सेवा कर रहे हैं, एक बैटरी तो बदली है। अब देखिए, बैटरी डजंट मैटर, वो कम्युनिकेशन जो आया दैट मैटर्स ए लॉट, वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो कई बार ऐसा भी संभव है कि चीज का आदान प्रदान ना हो लेकिन भाव तत्व प्रमुख हो जाए और वो एक दूसरे को एहसास हो जाए। ये है उपयोगिता और पूरकता। तो जैसे वसंत भाई का बिजनेस, वो उनके पिता ये सब कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अब ख्याल आ गया कि उत्पल ने सभी बागडोर संभाल ली है। तो मैंने उत्पल को सामने से कहा कि भाई बेटा, मिलना होगा, मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। फिर हम मिले और अच्छी तरह से हमारा डिस्कशन हुआ। देखिए, हमारे बीच में कोई कॉमर्शियल फाइनेंशियल बातें नहीं हुई क्योंकि वो गौण हो गया था, वो निकल गया। ये विजयन पंड्या की जो मैंने बात कही, कभी कॉमर्शियल रिलेशनशिप रहे, कभी क्लाइंट रहे मेरे, वो ट्रांसेंड होकर के हमारे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बन गया, जो मेरे लिए फिल्म देखते रहते, राइट। ब्रह्म विहारी स्वामी का कॉकरोच वाला इंग्लिश आर्टिकल उन्होंने ही रखा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, ओके। हालांकि बीइंग कंट्रोलर ऑफ दिस वेबिनार, मैंने जो कहना था वो कहा भी। तो संबंध इस लेवल का है। अगर मैं ऐसा सोचने लगूं कि इनको बुरा लगेगा तो फिर दोस्ती किस बात की। देखिए, समझ में आना चाहिए, लुकिंग गुड एंड बीइंग गुड। शायद सुन भी रहे होंगे, वीडियो नहीं है इनका ऑन, लेकिन लिस्ट में होंगे। लुकिंग गुड में क्या होता है कि मैं इनको बुरा ना लगूं। बीइंग गुड में क्या होता है, हम सही में अच्छे हैं और उनके अच्छाई की कामना करते हैं, राइट। तो अभी लॉन्ग टर्म पे देखें, जैसे छोटी सी सूचना है, विजयन भाई वो समझ लेंगे। अगर ये इनको सूचना नहीं गई, आगे ऐसा कुछ रख दिया और ये पूरे ग्रुप में से किसी ने इनका इंसल्ट कर दिया तो कितना बुरा होगा। अब वो तो भले भाव से लिख रहे होंगे, शायद वो जुड़ने के पहले प्रोटोकॉल सेट कर दिए होंगे, उनका शायद ध्यान नहीं भी रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं उनको प्यार करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है ध्यान आकर्षण कराना। समझ में आ रहा है। तो राखी बहन ने जो शेयरिंग किया वो है ध्यान आकर्षण, कि चलो बैठ के बात करते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षण करा रही हूं कि मुझे कहाँ इश्यू हो रहा है, या मेरी वजह से आपको प्रोफेशन में कैसे लंबे हद तक इश्यू होते होंगे। जब ये कन्वर्जेशन शुरू होता है तो सामने से ऐसा ही रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप इज अ मिरर। मैं कृष्णमूर्ति को तो नहीं मिल सका, लेकिन उनकी एक बड़ी फेमस किताब रही, ये रिश्ते क्या है। टाइटल एक किताब का यही है, ये रिश्ते क्या है। और मैं विमला जी को मिला, जो कृष्णमूर्ति जी के साथ बहुत अच्छे लंबे समय तक रही, विमला ठकार। जैसे आज चंद्रेश ने सवाल पूछा, लगभग ऐसा ही सवाल मैंने पूछा। उन्होंने कहा, बेटा रिलेशनशिप इज अ मिरर, रिलेशनशिप एक आईना है। अपने रिलेशनशिप में अभी क्या हो रहा है उसको देखेंगे तो हमें बिल्कुल पकड़ में आएगी कि हम इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। हमारा क्या आदान प्रदान का देखना है। सत्य ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा था। वो सवाल था कि सभी रिलेशनशिप में स्वार्थ होता है। हाँ, आदान प्रदान तक तो स्वार्थ है, पर उससे बियॉन्ड जाने की इंसान में क्षमता है, और उस क्षमता का नाम ही है संपूर्णता। मैं अधूरा हूं, अकेले में मैं कुछ नहीं, अकेले में मैं कुछ नहीं। देखिए, मेरा शिक्षक कर्तव्य अभी अभी जो हो रहा है, आप में से बहुत सारों की आध्यात्मिक यात्रा है। मैं बता दूं, ये मैं ऐसे प्रवाहित कैसे हो सकता हूं, कब कैसे उदाहरण याद आ जाते हैं, ऐसा कैसे होता है। केवल एक ही इंटेंशन है
मैं कैसे उपयोगी हो जाऊं, मेरी वजह से, मेरा ये अभिव्यक्ति की वजह से कैसे आपकी जिंदगी में और रोशनी आए और खुशहाली आए, ये इंटेंशन के साथ मैं यहाँ पार्टी मार के बैठता हूँ। और इसी इंटेंशन के साथ पूरा वेबिनार चलता है और 2 वेबिनार के बीच में चिंतन भी चलता है। उपयोगिता और पूरकता। तो उपयोगिता के भाव से चलेंगे तो अब हम सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग के अंदर संबंध का ये दायरा आते ही वो वर्ल्ड के लेवल पर बोलना शुरू करती है। चलो आज मैं ले चलता हूं वारिस डिरी की जिंदगानी में। अफ्रीका की एक लड़की, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की रही होगी। अफ्रीका की इस जाति के अंदर महिलाओं की सुन्नत की परंपरा है। अब महिलाओं की सुन्नत क्या है? महिलाओं को पेशाब करने की जो जगह है उसके आसपास जितनी भी चमड़े का हिस्सा है इनको ये काट देते हैं। और कैसे काटते हैं? विदाउट एनेस्थेसिया। पुरुषों को जो शेविंग करने की ब्लेड होती है उससे उसको काट देते हैं। टेक्निकल भाषा में कहे तो लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सभी। और काट के फिर इसको सील देते हैं, धागे से सीलते हैं। इतनी हद तक सीलते हैं कि केवल पेशाब का एक ही बूंद निकल सके, वो भी बाय प्रेशर। तो इस सुन्नत की प्रथा के पीछे ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करने से स्त्री निम्न है या ठीक नहीं है। मूलतः पुरुष की विकृत मानसिकता का ये प्रदर्शन है। और ये करने वाली स्त्रियां होती है, पुरुष नहीं होते। और ये छोटी उम्र में करते हैं। और करने वाली सभी स्त्रियां ऐसी मानती रहती है जैसे सास भी कभी बहू थी, क्योंकि वो भी ऐसे मानती है इसलिए करती है। माँ मानती है इसलिए बच्ची को भी कराती है। इससे बहुत सारी बच्चियां मर जाती हैं। सद्भाग्य से वारिस डिरी बच गई। इसी कोमल उम्र के अंदर इस लड़की ने मन में सोचना शुरू कर दिया कि मेरे साथ जो हुआ है वो तो हजारों के साथ हो रहा है, नहीं बंद करना चाहती हूँ। देखिए, ये है इंसान और ये है पारमिता, ये है जन्मों जन्मों की यात्रा। इस छोटी बच्ची ने ठान लिया, बड़ी हो गई, भाग गई अफ्रीका से। भागते भागते यूरोप गई, यूरोप से पहुंची अमेरिका। मैं दिखाना चाहता था आपको फिल्म, पर इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसमें पीड़ा भी है। हालांकि वो प्रक्रिया नहीं दिखाते, लेकिन बच्ची के जो चीखे वगैरह वो फिल्म के अंदर बनी है, तो आई डोंट वांट टू शो यू। पर वारिस डिरी लिखोगे तो गूगल के अंदर उनकी मॉडलिंग की क्लिप्स मिलेगी और ये मिशन की मिलेगी। तो वारिस डिरी ने अमेरिका में मॉडलिंग का काम शुरू किया। कैन यू इमेजिन 1 घंटा लगे किसी महिला को पेशाब करने में? इमेजिन द पैथेटिक कंडीशन। वो कभी मां न बन सके, और इसने ये मिशन उठाया। उसके ऊपर ये अफ्रीका की कम्युनिटी के लीडर्स ने कुछ हजारों डॉलर का इनाम रखा कि किसी तरह वारिस डिरी को मारो, क्योंकि ये लोग तो अमेरिका में भी है ऐसे मानने वाले लोग। वारिस डिरी एक सक्सेसफुल मॉडल बन पाई, इसीलिए वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी पाई। दोस्तों, जब मेरे हाथ में उसकी किताब आई, उस किताब का नाम था डेजर्ट फ्लावर, और मैं भोजन के पहले दोपहर को ये पढ़ रहा था। और मेरी रोने की आवाज सुन के मेरी बेटी स्टडी रूम से, पापा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं नहीं कह सकता। फिर मैंने भोजन छोड़ दिया। उस दिन मैं खाना नहीं खा सका। बेटी ने बहुत कहा, मैंने कहा आप लोग खाना खा लो। उसके बाद उसने मुझे कहा कि पापा बताओ। मैंने कहा बेटा सब बताता हूँ, और तुम्हें ये किताब भी पढ़नी है, लेकिन पहले खाना खा लेना शाम का, उसके बाद पढ़ लेना। इमेजिन करो, शाम को मेरी सूचना के अनुसार मेरी बेटी ने खाना खा लिया और मुझे गले से लग के रो रही। इतनी पीड़ा उस किताब पढ़ते हुए हम बाप बेटी को हुई। मैंने वारिस को खत लिखा कि मैं तेरे साथ हूं, ईमेल से। तो वारिस का जवाब आया कि मिस्टर पटेल, यू आर वेरी लकी, यू लिव इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये गलत प्रथा नहीं है, पर मुझे इतना अच्छा लगा कि भारत में रहते हुए भी तुमने मुझे ईमेल लिखा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कैसे मैं तुम्हारे सहयोग करूं इस मिशन के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड में से महिलाओं की सुन्नत की प्रथा दूर करने में लगी है। મિત્રો, ગુજરાતીમાં જેને પુસ્તક વાંચવું હોય, રણમાં ખીલેલું
પુષ્પ, ઇંગ્લિશમાં ડેઝર્ટ ફ્લાવર. ये है संबंध. खुद तो पीड़ा भोगी लेकिन किसी को पीड़ा ना हो, जिसके नाम माथे पे इनाम हो. क्यों ये सब कर रहे? मलाला, गांधी जी की आत्मकथा के बाद किसी आत्मकथा ने मेरा मन मोह लिया हो उस लेवल का, वो है मलाला. हालांकि बहुत सारी आत्मकथा ने दिल को छुआ है, लेकिन गांधी जी ने कहा माई लाइफ इज माई मैसेज, उस लेवल का स्टेटमेंट उसके बाद इतने सालों के बाद किसी व्यक्ति ने किया, आई एम मलाला. इट इज लाइक माई लाइफ इज माई मैसेज. क्यों इतना विरोध? आज भी इसके नाम इनाम है. अभी अफगानिस्तान लौटी थी तो पहले से मार दो इसको, लेकिन पुलिस वगैरह ने काफी करी, लेकिन फिर भी वो घर तो गई. मार दे तो मार दे, लेकिन मैं घर जाना चाहती. यूनाइटेड नेशन तक स्पीच हुई. ये मैं कुछ एक नाम इंटरनेशनली इसलिए बोल रहा हूं कि वो फेमस है. चलो अहमदाबाद में चलते हैं. सुखदेव पटेल, गणतर, निष्ठा ठाकर के तो आपके बीच में मैं ले आया हूं, राइट. ऐसे कितने लोग हैं. मेरे पड़ोस में रविंद्र काका बता चुका हूं, 115 बार ब्लड डोनेट किया. हमारे आसपास कितने लोग हैं जो संबंध का बड़ा दायरा समझते हैं. खारोड़ साहब की कहानी कह चुका हूं. ये मेरी जिंदगी में है जो मुझे बेहतर इंसान बनाते हैं. शिवपाल भाई बोल रहे थे ना, आप बेहतर इंसान बनाते हो, क्योंकि लाइफ स्किल में बेहतर लाइफ होगी तो बेहतर स्किल होगी. लाइफ ही बेहतर नहीं होगी, क्या स्किल बेहतर करके करोगे? अच्छा कम्युनिकेशन करके लोगों को मैनिपुलेट करोगे, अपनी जिंदगी में खोट ले आओगे, गिल्ट से भर जाओगे, अशांति से भरोगे, नींद खराब होगी, बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे. जबकि जिंदगी अच्छी होगी, जिंदगी खूबसूरत होगी. देखिए राखी बहन के आंखों से भी गंगा बह निकली. यही गंगा है. मैं प्रणाम करता हूं इस भाव को. यही भाव फर्क करने वाला है. एक इंसान दूसरे की पीड़ा का एहसास कर सकता है कहीं पर भी बैठा हो, और यही विचार पक्ष है. केवल आंखों में देख के. और ये ऐसा सालों साल रहता है. किसी की आंख में देख के मैंने प्यार बहाया था, मुझे भी, उसे भी याद, मुझे भी याद. ऐसा आपकी जिंदगी में जितने लोगों के साथ हो कि हाँ उसकी आंखों का आमी मैंने पिया है. देखो इसके लिए पुरुष स्त्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने कहा ना, ध्यानवी का उदाहरण लिया ताकि आपको पकड़ में आए. ऐसा हम देखें, यही चीज है जिसको कहते अव्यक्त. मैंने जो अभी स्लाइड दिखाई थी, अब चलिए मैं आपको सांख्य योग के अंदर बीच वाले भाग में ले जाता हूं. नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका. जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, वो आत्मा है. अब यहाँ आत्मा, सोल, रूह बोलेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम तो साइंटिफिक बात करना चाहते हैं. तो मैं थोड़ी देर के लिए आत्मा शब्द को साइड में रख के केवल मैं शब्द का प्रयोग करता हूं. और मैं इसलिए मैं बोलूंगा ताकि आप सुनोगे तो आपके अंदर मैं सुनोगे. मैं सुबह से शाम तक जो भी करता हूं वो केवल और केवल सुखी होने के लिए करता हूं. ऐसा पहला मुझ में दिखता है. मुझे वेबिनार में बैठता हूं तो सुखी होने के लिए बैठता हूं, नहीं बैठता हूं और कोई एजेंडा है वो भी सुखी होने के लिए ही है. मैं एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूं. अल्पा मैं इसीलिए पढ़ाती हूं क्योंकि मुझे पढ़ाता है हुए या तो सैलरी से सुख मिलेगा, या विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए सुख मिलेगा, या मेरी विषय के ऊपर कोई एक्सपर्टीज है उसको एक्सप्रेस करते हुए सुख मिलेगा. ऐसा मेरा ख्याल है. मुझे सुख मिले या नहीं मिले वो तो बहुत सारी चीज पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे शुरुआत तो सुख के लिए है. जैसे मैं तो बंबई सुखी होने के लिए जा रहा था, पर ट्रेन के अंदर किसी ने मेरी गोदी में उल्टी कर दी तो मैं तो दुखी हो गया. पर मेरा प्रयत्न तो सुखी होने के लिए था. जब मैं चिल्लाया उसके सामने ये साफ करो,
तो चिल्लाना, बम्बई जाना, साफ करना, एक एक सभी के सभी काम केवल सुखी होने के लिए है, ऐसा मुझ में दिखता है। अब मैं सुखी होने के लिए क्या करता हूं? सुबह में उठ के चाय पीता हूं, चाय का 15 मिनट टेस्ट रहता है, उसके बाद में फिर दोपहर का इंतजार या ब्रेकफास्ट, उसमें भी 15-20 मिनट सुख मिलता है, उसके बाद में फिर वो चला जाता है। फिर दोपहर तक इंतजार, दोपहर में कुछ खाता हूं, भरवा भिंडी, रसगुल्ला, राइट। अल्पा के घर जाऊंगा तो खांडवी खाऊंगा, अभी शिल्पा बहन ने तो कह दिया है खांडवी खिलाऊंगी, तो 15-20 मिनट, और मेरा यकायक ध्यान जाता है, अरे सालों से मैं अल्पा के साथ जुड़ा हूं, शिवपाल को मिलके ऐसा लगता है कि जुड़ा कुछ और लेवल का पहले से है। एक ही गाना मेरे मन में बार बार आ जाता है, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई मैं पहचान गया हूं भाई। दर्द यहां होता है, आंख कहीं और बह निकलती है, तो मेरा ध्यान जाता है कि ये सब जो मैं खाने पीने से सुख की कोशिश कर रहा था, वो तो सेंसलेस लेवल पर है, इंद्रियों के लेवल पर है। मेरी पांचों सेंसेस में जो सुख का एहसास है वो मजा है, और वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन हम जुड़े हैं, इसका एहसास हमें सुख से भरता है। अब वेबिनार तो अभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन कल का इंतजार अगर रहता है, इसके बारे में बातचीत होती है, मेरे बारे में आपको अच्छे विचार आते हैं, अगर आते हैं तो आप उसी समय तो सुख का एहसास करोगे 100%। क्या उर्मिला सही कहा कि गलत कहा? राइट। उर्मिला को सुख का एहसास होता है तो हिरल अपनी बहन को कहती है, हिरल तू भी आ जा। और हिरल को मैं कहता हूं, हिरल तेरा डीपी ठीक नहीं है, क्योंकि तू उर्मिला की बहन है तो मुझे कहने का हक है, ये तेरा डीपी ठीक कर। सभी लोगों को तो मैंने कॉमन सूचना वेबिनार में रख दी, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, फूल ये सब मत रखो, ईश्वर ने तुम्हारे जैसा खूबसूरत चेहरा किसी और का संसार में नहीं बनाया। देखो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, पृथ्वी का सबसे खूबसूरत व्यक्ति मैं आपके सामने अभी उपस्थित हूँ, राइट। फिर ऐसा मत सोचना कि तस्वीर नहीं ली, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं। अभी जो मुस्कुरा रहा है उसको मेरा भाव पहुंच गया, क्योंकि आपके जैसा भी कोई नहीं। एवरीवन इज यूनिक। हमारी गड़बड़ी क्या है? हम कोशिश करते हैं कि हम दक्षिण भारत के रजनीकांत जैसे कैसे दिखे, राइट। हम माधुरी दीक्षित जैसे कैसे दिखे। हमारी गड़बड़ी यहीं पर है, हम जो भी है वो इतने खूबसूरत है, पर हम दूसरे जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। लुकिंग गुड, पूरा मामला लुकिंग गुड का है। अभी मेरा एक छोटा भाई जैसा वंदन ठक्कर यहाँ है, उसकी एक आंख नहीं है, पर वो सैकड़ों पेरेंट्स को अच्छी तरह पेरेंटिंग करके उनकी आंखें खोल रहे हैं। हो जाए तालियां इस बात पर। तो इंद्रिय के लेवल पर, सेंसिस के लेवल पर तो सीमा है, हमारे लेवल पर कोई सीमा नहीं। तो वारिस डिरी ऐसी स्थिति होते हुए भी असीम लेवल पर काम कर रही है। ग्रेटा थनबर्ग उम्र छोटी हुए भी काम कर रही है। हमारी निष्ठा बहन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने पर भी काम कर रही है। ऐसे हजारों लोग देश में, दुनिया में काम कर रहे हैं। इनको संबंध का ये दायरा समझ में आ गया है कि मुझे जो समझ में आया है उसको अभिव्यक्त कर दूं, उसके बिना मैं अधूरा हूं। पूर्णता का एहसास तभी होता है मनुष्य अपने महत्व को जानकर और जीकर ही तृप्त होता है। जो चीज आप करने में सक्षम हो वो करते हो, तभी तृप्ति एहसास करते हो। जो चीज आप करने में सक्षम हो और नहीं करते तो खोट महसूस करोगे। लुक इट योर कैपेबिलिटीज। अब ये उदाहरण ठीक नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट भी नहीं है, लेकिन फिर भी खटाक से जाएगा इसलिए बताता हूं। आप AK-47 हो और उससे मच्छर मारने की चेष्टा कर रहे हो, क्योंकि AK-47 से डायनासोर मार सकते हैं। नहीं, मारने वाली कल्पना ठीक नहीं, लेकिन खटाक से पहुंचे इसलिए मैंने ये उदाहरण का प्रयोग किया। तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आप करते क्या हो?
देखिए ये सांख्य योग चल रहा है। कईयों को जब शुरुआत हुआ था तो हम ऐसा लगता था कि भगवत गीता और आईपीआर का कैसे कनेक्शन होगा। इसके लिए मंत्रगान करने की जरूरत नहीं है, पढ़ के आओगे तो बिल्कुल पकड़ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूं। आत्मा का छेदन नहीं हो सकता, गांधी नहीं मर सकते, भगत सिंह नहीं मर सकते, इम्पॉसिबल। उनका शरीर नहीं रहेगा, उन्होंने जो किया हमारे अंदर स्थान कायम, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। आइंस्टाइन कहते हैं आने वाली पीढ़ियां मान नहीं सकेगी कि पृथ्वी पर कभी हाड़ मांस का ऐसा इंसान चला होगा। गांधी जी के बारे में ऐसा कहा। तो मैं अव्यक्त चीज क्या है और कैसे दोस्त एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ती है, उसका एक हृदय स्पर्शी प्रसंग अपनी जिंदगी का शेयर करता हूं। ध्यान रहे, मैंने आत्मा शब्द को लिए बिना मैं की भाषा में ये कहा कि मैं सुबह से शाम अलग अलग इंद्रियों का सुख पाता हूं। वो क्षणिक सुख है, उसका कोई विरोध नहीं है। आराम से रसगुल्ला भरवा भिंडी खाओ, पर ध्यान रहे वो 15-20 मिनट का ही मजा है। जबकि जिस मजा की मुझे तलाश है, जो सुख की मुझे प्यास है, वो तो इंसानों के साथ जुड़ के ही आती है, और वो निरंतरता की प्यास है। निरंतरता की प्यास है और वो निरंतर रहेगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम में मैं बहुत बार राखी बहन का नाम ले चुका हूं। प्रोग्राम शुरू हुए से आज तक शायद एक आध कॉल पर बात हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज नॉट ए सिंगल कॉल। मैं श्रीपाल भाई का भी नाम ले रहा हूं, रजनीकांत भाई का भी नाम ले रहा हूं। व्हाट्सएप चैट जरूर हुआ है, कॉल नहीं हुआ, मिले भी नहीं। पर महसूस क्या करते हैं रजनी भाई, एहसास क्या करते हैं आप? बोल के बताओ, आपकी तो आवाज भी बहुत खूबसूरत है। हाईली कनेक्टेड, हाईली कनेक्टेड। और इसका सुख है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कितने लोगों का मेरे साथ जुड़ाव का सुख महसूस कर रहे हो? फीलिंग हैप्पी अबाउट वी कनेक्ट अवर कनेक्शन। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते होंगे और चले जाते होंगे, लेकिन कुछ कैसे जुड़ जाते हैं उसके ऊपर ध्यान दो तो पकड़ में आएगा कि वो लोग इसीलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस संवादिता पर चले जाते हैं जहां उपयोगिता और पूरकता है। फिर चाय का एक कप क्यों ना हो और केवल गर्म पानी की बोतल क्यों ना हो। मेरे विद्यार्थी पूछते हैं, सर चाय बराबर बनी? मैं उनको कहता नहीं, लेकिन अभी बताता हूं, मैं कहाँ चाय पीता हूं, मैं तो तुम्हारे प्यार को पीता हूं। चाय तो गले को थोड़े देर के लिए गर्म और 2 सेशन के बीच में ब्रेक में आराम है, पर उससे ज्यादा आराम तो मुझे इससे मिलता है कि तुम बड़े प्यार से मेरे लिए गर्म पानी या चाय ले आते हो। इंपॉर्टेंट भोजन नहीं है, आपका प्यार भरा न्योता है और आप हमेशा चाहते हो और मैं भी चाहता हूं। तो ऐसी कोई अनुकूलता मिल जाए तो जरूर आऊंगा, पर न आए तब तक भी सुख का एहसास। मोना, मैं तुझे भी प्रणाम करता हूं। बेटा रोना नहीं, ये वैसे खुशी से रो रही है, लेकिन तात्पर्य यह है कहां कहां से लोग जिंदगी में आते हैं। दोस्तों, मैंने जितनों के नाम लिए, इसमें से एक भी व्यक्ति के साथ मेरा खून का नाता नहीं है। एक भी व्यक्ति के साथ वो चचेरा ममेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। लोग अलग रास्ते से जिंदगी में चले आए। टिक गए, ठीक इसीलिए गए कि अव्यक्त पर ध्यान चला गया। तो दोस्तों, अब सांख्य योग के अंदर जैसा वर्णन है मैं अभी लेता हूं उसी को, ताकि आपको कनेक्शन मिल जाए। मैं सुबह से शाम तक निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसको मैं देख सकता हूं, तो देखने वाला मैं हूं। और मेरा ये होना निरंतर है, मेरा करना निरंतर नहीं है। जैसे मैं 10 मिनट के लिए खाऊं, 15 मिनट के लिए रसोई बनाऊं, 8 घंटे के लिए काम करूं, पर मैं काम नहीं करता हूं फिर भी मैं हूं। एक लेवल समझ में आया? मैं नहाता हूं तभी तो हूं, मैं जब स्नान नहीं कर रहा हूं तभी भी मैं हूं। दूसरा लेवल, मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं जाते, मैं विचार को देखता भी हूं। ये विचार की आवन जावन को देखने वाला मैं हूं। विचार निरंतर नहीं है, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन मैं निरंतर हूं। मेरे अंदर भावनाएं उठती है, कभी खुशी कभी गम,
कभी अति प्रसन्नता, कभी अवसाद, निराशा, कभी किसी के लिए पीड़ा, कभी किसी के कल्याण का भाव, किसी से दूर हटने का भाव, ऐसा सब होता रहता है। ये बदलता रहता है, फिर भी मैं हूं। रात को मैं सो जाता हूं, ऐसा मेरा भ्रम है, मेरा शरीर सो जाता है। 200 लोग सोए हुए हो ना, मैं कहूं ईशान तो केवल ईशान ही जवाब देगा, बाकी सब सोते रहेंगे। करके देख लेना, घर में का अगर 6-7 लोग हो, जहां सोए हुए हो, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना, उसके शरीर में थोड़ी हलन चलन होगी। जरा ज्यादा आवाज करोगे तो उठेगा, वही उठेगा, बाकी के कोई नहीं उठेंगे। हाँ, एकदम चीसा चीस करोगे तो सभी उठेंगे, पर केवल नाम पुकारने वाली बात है तो केवल वही जवाब देंगे, उठेंगे। ऐसा क्यों? हम कभी सोते नहीं है। रात को सपने आते कि नहीं आते? वो सपने कुछ नहीं है, विचार है। देखने वाले तो तुम ही हो। दिन में आंखें खुली रहती है इसलिए चीजें दिखती है, रात में आंखें बंद होती है तो उसी विचार जो दिन में दूसरे दृश्यों के साथ मैसअप हो जाते हैं अब साफ दिखते हैं। जैसे देखिए, अभी आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको कहूं कि कमल का फूल देखो, तो मन में आप कमल का फूल भी देख रहे हो और मुझे भी देख रहे हो, हाँ या ना? अभी देखो, मैं दिखा रहा हूं, मुझे देखते हुए हाथी कमल के फूल को तोड़ रहा है, कमल के फूल को तोड़ के ऊपर बैठे महावत को हाथी दे रहा है। मैं भी दिख रहा हूं, हाथी भी दिख रहा है, कमल का फूल भी दिख रहा है, महावत भी दिख रहा है। ये सब मैसअप है, मिक्सअप है। रात में आंखें बंद है, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। अब केवल जो अंदर देख रहे हो वही दिखेगा। देखने वाले तो तुम ही हो। सुबह उठते ही कई बार सपना याद रहता है, कई बार नहीं रहता। दिन में भी सुबह में क्या सोचे थे थोड़ी शाम को याद रहता है। गड़बड़ी कहाँ है? हम देखने वाले हैं ऐसा हमें सिखाया नहीं स्कूल में। और अब मैं बड़ी गंभीरता से बोलने वाला हूं। कहलाने वाले संप्रदाय और धर्म लगातार अपना फैलाव बढ़ाते हुए ऐसा अफीम पिलाते हैं कि हमें देखने का मौका ही ना मिले। बहुत कम संप्रदाय ऐसे हैं जो खुद के अंदर देखने का कोई व्यवस्था करता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहेंगे मेरे पांव मत छुओ, क्योंकि मेरे पांव छूने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्वयं के अंदर देखना होगा। देखो, पांव छूना, आशीर्वाद देना अच्छी बात है, मैं उसका विरोध में नहीं हूं, पर इतना बिल्कुल समझ में आना चाहिए, जब किसी का पांव छुओ तो आपके हृदय में समर्पण का, विनम्रता का भाव है। वो भाव फर्क करता है, वो पांव छूने से फर्क नहीं होता। आशीर्वाद शब्द बोलने से कुछ नहीं होता, पूरी प्रकृति की डिजाइन है। बोलोगे बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आशीर्वाद के अंदर भाव छिपा होना चाहिए। वो भाव तत्व प्रमुख है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। वो कैसे जुड़ते हैं? तो हमारा संबंध जो दो मैं है उसके बीच में है। विचार मेल खाए, दोस्ती बने। और दोस्ती टूट जाए तो समझना कि विचार के मेल नहीं होते हुए भी दोस्ती क्यों टिक गई। मैं विनोद भाई की बात बता चुका हूं, दोस्ती टिक जाती है, उम्र का लिहाजा नहीं रहता, क्योंकि अव्यक्त पर ध्यान चला गया। तो विचार मेल ना खाते हो, कार्य का तो सेम नहीं। तो अब जो मैं स्टोरी कहने वाला था वो स्टोरी कहता हूं ताकि आपको अव्यक्त का कैसा कनेक्शन है वो पकड़ में आ जाए। ये पकड़ में आ गया, अव्यक्त और व्यक्त, मैंने सरल शब्द प्रयोग किए हैं। जो अव्यक्त है उसी का ही संबंध है, वही मैं हूं। फिर आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, जो भी कहो, वो मरता नहीं है। उसको समझाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड, हम कभी कैसे मरते नहीं है उसका इशारा इस स्टोरी में मिल जाएगा। बचपन से भगत सिंह हीरो रहे। कॉलेज के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे छोटा कार्ड दिया सभी को भगत सिंह का। आज तक मेरे पास वो कार्ड सुरक्षित। उस भगत सिंह के कार्ड को ऐसे ही एक स्टूडेंट आया, इतना मेरे प्रति भाव व्यक्त किया। मैंने उसको कहा, अब कार्ड आज भी मेरा ही है लेकिन अब वो तेरा है, अब तेरे पास रहेगा तो मेरे पास ही रहने के बराबर है। तो इसलिए मैंने कहा मेरे पास कार्ड है, तो फिजिकली अब मेरे पास कार्ड नहीं है, तो इंजीनियरिंग तीनों से वो संभाला था, वो मैंने दे दिया। भगत सिंह के घर जाने की तमन्ना रही, वो मेरे हीरो रहे। तो मैं पंजाब जितनी बार जाऊं
तलाशते मालूम पड़ा कि भगत सिंह साहब भारत और पाकिस्तान दोनों जगह रहे और उसका बचपन का घर खटखट कला रूपनगर यानी रोपार के पास है। तो देखिए कुदरत भी हमारी इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या करती है। मेरे प्रोग्राम डारला घाट में होते थे या चंडीगढ़ में होते थे। डारला घाट हिमाचल प्रदेश में, जैसे शिमला घाट, साला घाट, डारला घाट। शिमला को हमने घाट निकाल के फिर शिमला अकेला बोलते हैं, हालांकि वो घाट है। तो चंडीगढ़ से मैं डारला जाता। कंपनी अंबुजा सीमेंट ने मेरा रोपर में प्रोग्राम रख दिया जहां मुझे जाना था। तो मैं तो बड़ा खुशनसीब, चलो अब भगत सिंह के घर जाएंगे। तो जिस दिन मेरा 3 दिन का बैच, 1 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन का बैच, 1 दिन छुट्टी। छुट्टी के दिन मैं चला गया खटखट कला। देखा तो बड़ा ताला लगा था, गोरखा बैठा था बाहर भगत सिंह के घर के बाहर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो आता था। उसने कहा सॉरी सर, आज तो अर्जुन देव की जन्मतिथि है। अब मेरे पास मेरा कैलेंडर नॉर्मल गुजरात का, पंजाब में अर्जुन देव की जयंती उस दिन पूरी स्टेट का हॉलीडे। मैंने दोनों हाथ जोड़े, भाई बड़ी दूर से आया हूँ, बचपन से ऐसा सोचता आया, मेरे लिए तो ये तीर्थ धाम है, भगत सिंह मेरे लिए तो भगवान के बराबर है, प्लीज खोल दो। वो मेरा गिड़गिड़ा उसको टच कर गया। तो उसने कहा देखो सर, आपकी बात तो छूती है लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो सरकारी नौकरी है और चाबी मेरे पास नहीं रहती। चाबी ब्लॉक ऑफिसर, वहां तालुका अधिकारी या मामलतदार, ऐसा कोई जो भी होता होगा, उसके पास है। और मैं अगर उसके घर चाबी मांगने गया, आज छुट्टी का दिन है, तो मैं तो नौकरी से हाथ धो लूंगा। तो सर मुझे माफ करो, मैं चाबी ले नहीं सकता। दोस्तों विंटर के कोई दिन चल रहे थे या ठंडी के दिन थे, मैंने सूट पहना था। अभी 3 जगह घर खुला था भगत सिंह का और एक जगह से वो कॉमन वॉल थी बाजू वाले मकान के साथ। मैंने वो आधी प्रदक्षिणा करी 5 बार और जो मेन दरवाजा था उसके सामने धूल के अंदर पूरा लंबा साष्टांग दंडवत कर दिया, माथा टेक दिया उस चौखट पे। थोड़ी देर के बाद मैं उठा, वो गोरखा कुर्सी पर से खड़ा हो चुका था। उसने मेरे पूरे सूट और पैंट से झाड़ा धूल को। बोले सर ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए तो एक मकान है, मेरे लिए तो तीर्थ स्थान है। मेरे लिए भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, ये भगवान है मेरे। मैं क्या करूं? कोई भक्त आएगा भगवान के घर तो प्रणाम नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैंने केवल प्रणाम किया है। मेरे कपड़े झाड़ने के बाद उस कुर्सी पर उस गोरखा ने मुझे बिठाया, साइकिल लेके गया कि ब्लॉक ऑफिसर यहीं रहता है गांव में, मैं अभी जाता हूँ, चाबी लेके आता हूँ। वापस आया तब चाबी लेके आया और छोटे से थर्मोस में चाय भी लेते आया, क्योंकि करीब आधा घंटा जितना समय गया होगा। पहले साहब पहले चाय पीजिए। ताला खोल दिया, अंदर भेजने के बाद कहता है सर मेरी नौकरी का सवाल है, लोग तो चुगली करने वाले होते हैं, तो जैसे आप अंदर जा रहे हो मैं आपको बाहर से ताला मार दूंगा, यहाँ बैठूंगा, आप आराम से जितना समय बिताना हो बिताओ, सभी तस्वीरें लो। ये केंद्र सरकार तो बोलती है तस्वीर मत लेना, लेकिन सभी तस्वीरें लो और फिर अंदर से खटखटाना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। दोस्तों मैं आराम से घर के अंदर गया, सभी घर की जगह देखी, तस्वीरें ली। जिस खटिया पर भगत सिंह साहब सोते थे उसके सामने पालथी मार के बैठ गया। मैंने वहां मेडिटेटिव पोज में भगत सिंह के साथ मनोमन कृतज्ञता व्यक्त की कि आपने कितनी छोटी उम्र के अंदर, लोग आपको नास्तिक कहते रहे लेकिन आप बड़े आस्तिक रहे, क्योंकि आपका ईश्वर कोई मंदिर वाला ईश्वर नहीं था। आपने मेरे लिए जान फसानी कर दी, आप मेरे लिए फांसी पर लटक गए। मैं आपके लिए पूरी जिंदगी कृतज्ञ रहूंगा। जिस टेबल पर वो खाना खाते थे, जिस थाली में वो भोजन करते थे, वो सभी मैंने तस्वीरें ली। दोस्तों आप देखना चाहोगे तो मैं वेबिनार ग्रुप पर रखूंगा, पर मेरी कंडीशन है आप इसको सर्कुलेट नहीं करोगे। तो ऐसा मुझे एहसास होगा तब मैं आपको वो तस्वीरें, 2-3 तस्वीरें रख दूंगा। तो ये मेरे लिए बड़ा एक क्या कहते हैं खजाना सा बन गया। अब आपको पकड़ में आया? आदान प्रदान से नहीं हुआ। जब मैं अव्यक्त जो चीज है वो उसको कनेक्ट कर गई, हालांकि वो कनेक्ट करने में मेरा एक्सप्रेशन काम का रहा, पर मैं मानता हूं वो ऐसा एक्सप्रेशन से भी नहीं होता अगर वो व्यक्ति खुला नहीं होता।
क्योंकि उसके सामने नौकरी वाला इश्यू था। उस लेवल तक पहुंच गया जब उसको लगा नौकरी गई तेल लेने। ब्लॉक ऑफिसर जाड़ेगा तो जाड़ेगा, लेकिन जाना तो चाहिए, एक बार मांगना तो चाहिए। दोस्तों आज ये घटना याद आई है, ऐसी बहुत सारी मेरी जिंदगी में घटनाएं घटी है। तो मुझे लगता है कि जो सांख्य योग के अंदर मूल बात है, हमारा एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव अस्तित्व के लेवल का एग्जिस्टेंशियल है। तो हम जो है एग्जिस्टेंस यानी हमारा होना निरंतरता का है। हमारा करना निरंतरता का नहीं है, सोचना निरंतरता का नहीं है, खाना पीना निरंतरता का नहीं है। तो अगर संबंध का दायरा केवल इतने तक सीमित रहेगा तो उस संबंध में तृप्ति का एहसास नहीं होगा, लेकिन उपयोगिता पूरकता का संबंध आएगा तो तृप्ति का एहसास होगा, जो मैं महसूस कर रहा हूं। तो उपयोगिता और पूरकता का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत पूरी प्रकृति में मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझाया, वो सबको याद है। पूरी प्रकृति के अंदर परस्परता में उपयोगिता और पूरकता है। एक दूसरे के बिना सभी अधूरे हैं, राइट। विदाउट पदार्थ अवस्था कोई भी अवस्था टिक नहीं सकती। विदाउट प्राण अवस्था हमारा होना इम्पॉसिबल है, शरीर का होना। तो हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम एक दूसरे के लिए पूरक है। अभी अभी मैंने जो सांस ली थी वो थोड़ी देर पहले नीम के पेड़ के अंदर घूम रही थी, और अभी जो मैंने निकाली है, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो वो आपके अंदर चली जाती। तो चॉप्सन कैफेटेरिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पूरा केमिकल बायोकेमिकल जो मास है वो तो फ्लक्स में है, एक्सचेंज होता रहता है। चमड़ी 7 दिन में नई हो जाती है, हड्डियां 11 महीने में नई हो जाती है। किसी एक व्यक्ति को साल के बाद हाथ भी मिलाओ तो ये नहीं कह सकते तुम्हें मिले, क्योंकि जिसके साथ हाथ मिलाया वो तो पूरा शरीर नहीं रहा, पूरा नया हो गया। तो कंटिन्यूअस क्या रहा? मैं कंटिन्यूअस रहा। वो मैं कंटिन्यूअस रहता है, बूढ़े हो जाते हैं फिर भी रहता है, और वो मैं बचपन से बूढ़े होने तक निरंतर है, नींद में भी निरंतर है, जागने में भी निरंतर है। ये इशारा है निरंतरता का। मरने वाली व्यक्ति भी कहती कि कैसे कहती है, इतना कर देना, इतना कर देना, इतना करने से इतना हो जाएगा, उसके अंदर कुछ ख्याल है। लास्ट मिनट तक उसको मरना नहीं है। बहुत कम विरले ऐसे होते हैं जो ऐसा चूज करते हैं कि अब शरीर काम का नहीं रहा, मैं छोड़ देता हूं। मेरा सद्भाग्य, मेरे दादाजी 95 तक तो घुड़सवारी करते थे, राइट, इतने फीट रहे। 97 में पूरे गांव की प्रदक्षिणा की, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। फिर भी कहा सभी यंग लोगों को इकट्ठा करो। तो यंग लोगों को इकट्ठा करके कहा, देखो बच्चों, व्यसन मत करना। मुझे बिल्कुल मालूम है मेरे छुपे छुपे मैं निकलता हूं तो तुम छिपा देते हो, लेकिन कुछ एक लोग गुटखा खाते हो, मैं तो तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन ऐसा मत करना। बड़ों की इज्जत करना। फिर बूढ़ों को बुलाया कि देखो बाप की जगह हो तो बाप की तरह पेश आना, झगड़े मत करना, प्यार से बच्चों को समझाना। मैं अब वापस नहीं आऊंगा। अभी इतने फीट व्यक्ति ऐसा कह रहे वापस नहीं आऊंगा, तो लोगों ने माना नहीं। वो सूरत गए मेरे कजिन के घर। 1 सप्ताह के बाद बुखार शुरू हुआ, 10 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं सद्भागी था, उनको सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो मुझे, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरे अंदर मेरे दादाजी आज भी जीवंत है। मेरे संस्कारिता के पट में दादाजी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। पिताजी अति व्यस्त रहे, जिंदगी के बहुत सारे उसूल मैंने उनके आचरण में से सीखा, लेकिन दादाजी के तो आचरण और कम्युनिकेशन दोनों में से सीखा। अब ये कैसे मर सकते हैं, शरीर नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि लास्ट मिनट तक जिनको ये क्लैरिटी ऐसे होती, ऐसे लोग हमारे बीच में से अभी अभी गए। जैसे हरिओम आश्रम के प्रेरक पूज्य मोटा, सूरत में उन्होंने काफी काम किया था। देखिए ये इंटरेस्टिंग केस है, मैं नाम भूल चुका हूं, लेकिन फिर भी ये स्टोरी बताता हूं, फिर इसके साथ में काम पूरा करूंगा। सांख्य योग में जो आत्मा की बात है, आत्मा कभी मरता नहीं है, इस बात की पुष्टि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह है। हरिओम आश्रम के प्रणेता पूज्य मोटा ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक व्यक्ति शायद रिटायर्ड हो गए थे, और 3 व्यक्ति को कह दिया कि इस तारीख को मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। पर इतने हजारों लोग
आश्रम में आते रहते हैं, मुझे बड़े आदर भाव से देखते हैं, तो बड़ा हंगामा होगा। मैं नहीं चाहता कुछ भी। तुम लोग आ जाओ, मैं शरीर छोड़ दूंगा, फिर चुपचाप अग्नि संस्कार कर देना, राख को नर्मदा जी में बहा देना और दूसरे दिन जगत को बता देना। मेरे जाने के बाद मेरे नाम की कोई तख्ती नहीं, मेरा कोई फोटो नहीं, मेरे पीछे कोई मूर्ति नहीं। वो 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने कहा कि क्या हम आपका शरीर छोड़ना देख सकते हैं? बोले देख सकते हैं। उन्होंने बस कुटिया में पालथी मारी, पद्मासन लगाया और शरीर छोड़ दिए। और कोई होता तो नहीं मानते, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे लेवल की व्यक्ति जिनके सामने ये घोषणा की थी, फिर उन्होंने दूसरे दिन जगत को बताया कि इन्होंने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा है और मैं उसका साक्षी हूं। कोई आत्मघात नहीं है, बड़ी स्वस्थता के साथ। जैनों में संथारा की परंपरा है, स्वेच्छा के साथ तय करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, फिर पानी छोड़ देते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। हालांकि उसमें विरले बहुत कम होते हैं जो बड़ी शातापूर्वक शरीर छोड़ते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि छोड़ देंगे, लेकिन बाद में बहुत पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो चिल्लाते हैं, तो घर वाले उसको जबरदस्ती फिर खाना पीना देने के बदले बोले नौकर बोल, और फिर उसको जबरदस्ती शरीर छुड़वा देते हैं। ये ठीक नहीं है। जिनकी शाता की अवस्था रही हो, ऐसे लोग जब शरीर छोड़े, हंसते हंसते शरीर छोड़ दे। मेरे पत्नी के फूफा भी ऐसे रहे, वो तो बिहार के अंदर थे और इन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया है, केवल एक काम बाकी रह गया है। मैंने गाय को दान देना पसंद किया था। अब कोई 52 साल की उम्र है, यंग एज रिलेटिवली। तो एक ब्राह्मण व्यक्ति को उसने ढूंढ रखा था। बाजार में गए, स्पॉन्टेनियसली गाय खरीदी, उसको दे करके बाजार में से नया धोतिया व्हाइट कलर का लेके आए और घर में एक जगह स्नान करके बैठे। उसने कहा था मैं 12 बजे शरीर छोड़ दूंगा, 1 बजे, फिर पाल्टी मार के बैठे और शरीर छोड़ दिया। अब देखिए, घर वाले फिर रोने लगे कि हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जिसका पूरा जीवन निरामय था, सरल था, कोई प्रपंच नहीं था। लोग बोले अच्छे आदमी, लेकिन इतने पहुंचे हुए हैं ऐसा किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि घर में ही बताया। उन्होंने बाहर डमडम नहीं किया कि पूरी दुनिया को बताओ, ऐसा बाहर नहीं कहा, घर में ही कहा, जैसे मेरे दादाजी ने कहा था ऐसे। तो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। तो मैं मानता हूं जो निरंतरता पर आपका ध्यान थोड़ा गया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने सांख्य योग आज पढ़ के नहीं आए थे, मेरी विनती है आज ही पढ़ लो, हो सके तो अभी समाप्त होने के बाद इमीडिएटली पढ़ लो, क्योंकि उसके अंदर आत्मा का जो वर्णन है उसके बारे में आपको सबन को पूर्ण समझ लेना है। अगर ये पकड़ में आएगा कि हम निरंतर है, अगर हम मरने वाले नहीं हैं, तब तो सबन कैसा बनेगा। हम यहीं पर ही है, हमें बार बार यहाँ शरीर लेना है, तो हम इस पृथ्वी को कैसी रखेंगे? हम इस पृथ्वी को हरी भरी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कल्पना कीजिए, आसमान में कोई पंछी उड़ता ना हो, कोई पतंगे ना हो, हरे भरे वृक्ष ना हो, फूल ना हो, तो जिंदगी कितनी बेसुरी हुई। आसपास खिले हुए लोग ना हो, मुस्कुराते हुए लोग ना हो, उत्सव का वातावरण ना हो, उस दुनिया में जीने का क्या मजा? तो वो तो हम ही क्रिएट करेंगे ना, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारी अभी छोटी सी शुरुआत करें अपने परिवार से, फिर समाज में जाएंगे, फिर पूरी दुनिया में जाएंगे। वैशाली को जो सुन के अच्छा लगेगा, वो स्टेटमेंट के साथ मैं समापन करता हूं। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, पूरा पृथ्वी एक परिवार हो, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार हो, मनुष्य देवता हो, हर एक मनुष्य देव हो। देव किसको कहते हैं? जो सभी का कल्याण करे। नित्य शुभ हो, हमेशा उत्सव का वातावरण हो। राइट? कितनी बढ़िया कल्पना है। और यही पृथ्वी स्वर्ग हो। भूमि स्वर्गताम यातु, मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्य यातु शुभोदयम। धर्म किसको कहते हैं? तो जहां से मैंने अर्जुन विषाद योग में छोड़ा था वहां कनेक्ट कर देता हूं। जिसका जिससे विलगीकरण ना हो सके वह उसका धर्म है। पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म जलाना, हमारा धर्म सुख। हम केवल इससे कभी
सुख शब्द से अलग नहीं हो सकते। हम निरंतर सुख चाहते हैं और हम खुद निरंतर है, तो हम निरंतर संबंध चाहते हैं। निरंतर संबंध है ही, इस संबंध में तृप्ति का एहसास हो जाए जब हम उपयोगिता पूर्वक जिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।